Hello guys, welcome to my channel Spidey Vlogs. Today I am with Mehul Agrawal and he is going to share his interview experience of cap round. Actually guys, जो कैप राउंड है ये इस साल कंडक्ट उदयपुर करा रहा है आईएम उदयपुर एंड इस कैप राउंड में जो न्यू आईएम्स होते हैं और जो बेबी आईएम्स मतलब आउट अराउंड 4 to 5 न्यू आईएम्स एंड अराउंड 4 बेबी आईएम्स, इन सारे आईएम्स का कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है। टोटल 9 आईएम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो राउंड्स है ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 14 फेब ही इनका जो स्लॉट था 14 फेब ही था और इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस किस चीजों से इन्हें गो थ्रू होना पड़ा, ये पूरा एक्सपीरियंस आज ये शेयर करेंगे। तो मेहुल आप जरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि क्या क्या प्रोसीजर था। Okay, so my slot pass for 14 Feb 9:30 a.m. and 9:30 a.m. I logged in this Zoom meeting. Zoom meeting में login करने के बाद लिखा रहा था कि host will let you in, and then around 9:35 the host let me in and he said, Mehul, you are at the right place. Kindly wait for your turn. When your terms come, your interview will start. So basically there was no vet, no document verification, nothing else. Directly interview. कोई वेरिफिकेशन नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ बैच नहीं था, सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस था। डायरेक्टली इंटरव्यू। तो गाइस कैप का जो ये राउंड है इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है और कोई प्रोसेस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी नहीं है, बस आपको जूम लिंक ज्वाइन करना है। तो आपने ऐसे आपका 9:30 पे जूम लिंक आपने ज्वाइन किया था, फिर कितनी देर वेट करना पड़ेगा? सो माय इंटरव्यू स्टार्टेड अराउंड 10:30 a.m. 10:30 तो मतलब 1 आवर के अराउंड आपको वेट करना पड़ा और उसके बाद तो 10:30 पे पैनलिस्ट आपके सामने थे। यस ठीक है, तो कितने पैनलिस्ट थे आपके सामने? सो मेरे आगे दो पैनलिस्ट थे बट बोथ ऑफ देम वर सिटिंग इन वन सिंगल Zoom ID ओनली, सो प्रोबेबली दे वर इन द कैंपस ओनली एंड दे वर टेकिंग द इंटरव्यू टू। हाँ, मतलब साथ में ही होंगे कई लोग। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने पैनलिस्ट आए तो क्या मतलब इंप्रेशन था उनका और क्या स्टार्टिंग थी उनकी क्वेश्चन की? So there was one male panelist and one female panelist and they were around 40 years of age and both of them were looking like professors, so no alumni or nothing else. Both of them were professors only for sure. Okay. Yeah. तो फिर आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका? So first of all मैं बता दूं कि I am having a gap year after my graduation. So their first question was this only, Mehul, what are you doing currently? So yeah. And based on those, there were some cross questions also because currently I was working with my brother who is running a startup. So there were many questions based on the startups like what is startup valuation, how do you value a startup. So I mentioned one approach as DCF approach, discounted cash flow approach. But they wanted to know others and they were giving me hints, but I wasn't wise enough to get those hints and they directly asked me, Mehul, what is more important for a startup, income or profit? So yeah, around, like this there were many cross questions on the startup questions. तो स्टार्टअप के अंदर ही के थे सारे ज्यादातर सारे क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छे से ग्रिल कर लिया स्टार्टअप को रिलेटेड। I wouldn't say grill, they were nice enough to interact because they were also giving me hints like what you have to say, but it depends on the candidate. As a candidate I wasn't smart enough to take those hints. अच्छा, एक चीज जो आपने बताई अभी स्टार्टअप से रिलेटेड कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा मतलब वैल्यूएबल होता है या फिर इनकम। तो गाइज ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए भी, आप कमेंट से मुझे बताइए कि एक स्टार्टअप में इनकम ज्यादा वैल्यूएबल है या प्रॉफिट। Also I forgot to mention there was one more question around startup like what is the difference between pre-money valuation and post-money valuation? Okay. Yeah. तो प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन of a startup. तो उनको आपने ये नहीं बोला कि आप मतलब आप मेन रोल में आपने बताया था कि जो स्टार्टअप था आपके भाई का उसमें आपने अपने आप को लीड रोल में दिखाया होगा? No. साइड रोल में? I clearly mentioned it. I was preparing full time for the CAT and along with it I was also helping my brother in his business as a part time thing only, as a hobby kind of thing, not full time working over there. इसके बाद उन्होंने काफी कुछ जानना चाहिए। ठीक है। So after this there were some questions on academics because I am from psychology background. So there was one this direct question which a female panelist asked me, Mehul, try to convince us, coming from a psychology background, why would recruiters would like to hire you over other candidates? Okay, why you? Yeah, so basically why you? Your graduation will help you in MBA. Graduation degree. Yeah. तो जब आपने इसका आंसर दिया तो उसमें उन्होंने कुछ ग्रिल किया अंदर से कि डीप क्वेश्चंस? So I had prepared this answer beforehand, so there was no cross questions on this luckily, because I have given a full 2.5 minutes long answer and after that I asked मैम आप कन्विंस हो गए या मैं और बोल दूं? बहुत सही आंसर तो मैं तैयार करके बैठा था। ये फायदा होता है गाइस जब आप पहले से प्रिपरेशन करके रहते हैं, नहीं तो एंड टाइम पे आपको याद नहीं आता। आपने मतलब बहुत कुछ कर भी रखा होता ना लाइफ में, लेकिन एंड टाइम पे बहुत सारी चीजें माइंड में आती ही नहीं कि आपको क्या बोलना है। इसलिए पहले से प्रिपरेशन करके जाएं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि अभी एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला कि व्हाई यू प्रीफर यू ओवर अदर कैंडिडेट्स, ये अभी तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया, तो ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है।
ठीक है, इसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Then there were some questions related to budget. So I had read about budget in detail, but there was nothing specific with the budget 2023. But the budget, like they ask, budget is a fiscal policy or the monetary policy. ओके, फिस्कल एंड मॉनेटरी हाँ. पॉलिसी. So coming from an arts background, I think they wanted to see my general awareness whether I'm aware about this business terms, economic terms or not. So yeah. तो ये जो फिस्कल और जो मॉनेटरी का जो कीवर्ड्स आए थे, ये सिर्फ बजट से रिलेटेड आए थे या इनके बारे में भी कुछ आपसे पूछा आगे? इनसे भी आगे क्रॉस क्वेश्चन हुआ. सो as soon as they asked whether budget is a fiscal policy or monetary policy, I was clear in my mind it's a fiscal policy. And then they asked what is the difference between monetary policy and fiscal policy. So yeah, and what are the tools used in monetary policy? So like monetary policy is issued by RBI. So I said it is to control money supply in the market, and it is done by different ratios like reverse repo rate, SLR, CRR, and all these things. So yeah. बजट को टच करके निकल गए बस. बजट को टच करके निकल Guys, बिल्कुल बजट को टच करते हुए निकल गए. और बजट के बारे में हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं और बजट के बारे में पूछेंगे, पर इन्होंने थोड़ा सा डाइवर्जन कर दिया. अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, आपका बैकग्राउंड रहा है? No, नहीं, कोई सब्जेक्ट रहा है? No. नहीं, फिर भी. I'm from arts background, so in graduation I was having psychology, sociology, and English, so no economics. इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फिर भी Yeah. चलेगा. चलो, आपसे भी जा सकते हैं, रेडी रहना. Yeah. तो That's इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? That's it. This was the last question, and they asked me to sign off. बस खत्म. Yeah. It took only 10 to 12 minutes only, hardly 10 to 12 minutes. मतलब काफी जल्दी हो गया आपको. Yeah. ऐसा अंदर मतलब फील आया होगा ना कि इतनी जल्दी हो गया, लेकिन खराब तो नहीं हो गया मेरा इंटरव्यू? मेरे को भी लगा कि ऐसे कि did I fuck up somewhere or not, or I was good enough to convince them like I am the right candidate, but it got over in 10 to 12 minutes, and other candidates also were saying it took 10 to 12 minutes only for their interviews as well. वैसे गाइस, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपका इंटरव्यू अगर लंबा चलेगा तो वो बहुत अच्छा होने वाला है. ऐसा कुछ भी नहीं है. शॉर्ट इंटरव्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं. जो मेन जो चीज रहती है वो होती है आपने किस तरह से आपने आपको प्रेजेंट किया, आपने किस तरह से अपने आंसर्स दिए, और उनके जो क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्ट आंसर आपने दिए या नहीं दिए. इन चीजों से फर्क पड़ता है. वो 10 मिनट में भी कंप्लीट हो सकते हैं, 15 में भी हो सकते हैं, 20 में भी हो सकते हैं. तो जब आपने पूरा इंटरव्यू जो हो गया आपका 10 to 12 मिनट्स का, तो क्या लग रहा था आपको? मतलब जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ वहां पर पैनलिस्ट द्वारा, मतलब हैप्पी फेसेस थे, कन्विंस लग रहे थे, कैसा था? Hard to say. हार्ड टू से. Because first of all, both the panelists were sitting in one single frame only, so I cannot see their reactions like clearly. And then they directly asked me to Mehul, you can sign off now. So yeah. कुछ नहीं कह सकता. चलिए गाइस, तो ये था हमारा पूरा की पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. और वैसे मैं बता दूं, मेहुल के लिए यही सिर्फ कैप का इंटरव्यू ही नहीं है, इनके आगे और भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं जो अहमदाबाद से हैं, और भी टॉप आईएम से भी हैं अहमदाबाद के अलावा. I am Ahmedabad, I am Kozhikode, I am Shillong. तो इन सभी के लिए ऑल द बेस्ट मेहुल. Thank you. और गाइस, ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं और भी इंटरव्यूज को कवर करने वाला हूं, और अभी तो इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट हुए हैं. अभी तो ओल्ड आईएम्स के इंटरव्यूज बाकी हैं, और डे बाय डे जब उनके भी होंगे मैं वो भी अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं. तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए.